Hi, guys, and welcome back to Humanities. Today, we are going to discuss the sample question paper of political science. Okay, so we'll be discussing this today. And before I begin, I would like to give you a reminder or a message that please follow me on Instagram. Follow Humanities on Instagram. I'll be providing you with handwritten answers of all these sample papers that I'll be discussing here. तो पूरा solution जो होगा that will be provided on my Instagram handle, and all the notes of the chapters that I've made you learn till now are there. So make sure that you follow me there. Okay, so let's begin. Okay, now beginning with the instructions, I'll just quickly give you all the instructions. तो पहले जो 20 मार्क्स के आते थे हमारे 1 मार्कर, देयर वर 20 MCQs. अब वो MCQs 1 मार्क ईच के 16 कर दिए हैं. ओके, दे हैव बीन रिड्यूस्ड टू 16 फ्रॉम 20. But then also 2 passages based on MCQs have been added. तो basically अब 20 से ना 24 या 26 हो गए हैं आई गेस. ठीक है, तो बेसिकली 16 तो आएंगे ही MCQs, एंड जो बाकी आएंगे वो पैसेज में आंसर्स गिवन होंगे, उधर से यू हैव टू राइट द आंसर. एंड देन देयर आर क्वेश्चंस 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, मैप, कार्टून एंड 6 मार्क्स के क्वेश्चन. तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंस्ट्रक्शंस. नाउ लेट्स बिगिन. Okay, so question number 1. Which of these statements about the princely states is incorrect? Guys, एक चीज़ ध्यान रखना कि तुम ढंग से पढ़ो ये करेक्ट लिखा है या इनकरेक्ट, क्योंकि इसी पे बेस्ड है तुम्हारा आंसर, राइट? So we'll quickly read them. Some of the princely states clearly wanted to become part of Indian Union. This is right. The Indian government was ready to give autonomy to some regions, for example, Jammu and Kashmir. This is also right. Then comes, first of all, the ruler of Junagadh announced that the state had decided on independence. I don't think this is right. इसकी जगह Travancore था जूनागढ़ की जगह. So this is not the correct one, and the question is asking for the incorrect one. So this is the answer for this question. Okay. C, option C is the correct answer. Now moving on to the second question. Dash acts as a think tank of the union government. Think tank. Guys, iska answer is Niti Aayog. नीति आयोग इज़ द थिंक टैंक ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट. जो भी स्कीम्स आती हैं, जो भी पॉलिसीज़ आती हैं, वो नीति आयोग ही निकालती है. सो नीति आयोग इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ further, question number 3. Which set of the countries belong to the NATO group? Okay, अब ये NATO क्या था? This was a collective security mechanism जो 12 countries ने बनाया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि अगर हम में से किसी एक पे भी अटैक हुआ तो वील बी कंसिडरिंग इट एज एन अटैक ऑन दी 12 ऑफ अस. तो इसमें से ये ऑप्शंस दिए हैं. अच्छा, अब देखो, एक ब्रॉडली तुम समझ लो दैट जो US था और जो वेस्ट यूरोप था वो था नेटो के अंदर. ओके, सो US एंड वेस्ट यूरोप वॉज अंडर नेटो, तो हम उसी से हिसाब लगाएंगे. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन C, Britain, France and West Germany. Okay, so moving forward, question number 4. Now question number 4 asks कि globalization leads to each culture becoming. Okay, so what does each of this culture become globalization की वजह से? More different, more transparent, more distinctive या फिर more different and distinctive? ऑप्शन नंबर D इज़ द करेक्ट आंसर. ये बुक में साफ साफ लिखा है ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर में. सो दिस मीन्स कि तुम्हें बुक एकदम थॉरोली रीड करनी है. यू हैव टू रीड द बुक प्रॉपरली. नाउ मूविंग ऑन द फिफ्थ क्वेश्चन. विच फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू पाकिस्तान्स failure in building a stable democracy? Okay, so dominance of the military, yes, absolutely. Dominance of the clergy, yes. Dominance of the landowning aristocracy, yes. ये भी बुक में clearly साफ शब्दों में mentioned है, पैराग्राफ की लाइन है ये. So the correct answer is all of the above. This is the correct answer. Now
Moving on to question number 6 and question number 7. Okay, now I guess question number 6 में डाउट होगा सबको कि ये कहाँ से दे दिया है, ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया है. सो अरब स्प्रिंग बिगैन विद. गाइज दिस इज़ नॉट आउट ऑफ सिलेबस, ये चैप्टर बाइपोलैरिटी वाले चैप्टर में है. ठीक है, दिस इज इन दैट चैप्टर. सो इसमें है कि अरब स्प्रिंग बिगैन विद. ओके गाइज, नाउ अरब स्प्रिंग बिगैन विथ टूनिशियन रेवोल्यूशन. जो टूनिशिया कंट्री है उससे शुरू हुआ एंड देन इट फर्दर स्प्रेड टू इजिप्ट. सो इट बिगैन विथ टूनिशियन रेवोल्यूशन. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट. अगेन ठीक है, ये ध्यान से पढ़ना. ऑप्शन नंबर ए, 6-point प्रपोजल ऑफ शेख मुजिबुर रहमान फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी टू ईस्ट पाकिस्तान. देखो गाइज, नाउ आई विल टेल यू अ ट्रिक कि कैसे हमें ध्यान से एमसीक्यूज को पढ़ना है और एनालाइज करना है. अब इसमें मेन पॉइंट्स क्या थे? 6-point प्रपोजल बाय शेख मुजिबुर रहमान फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी टू ईस्ट पाकिस्तान. अब ना हम इन 3 पॉइंट्स को देखेंगे, इनमें कुछ सही है या गलत है. ओके, नाउ लेट्स एनालाइज. 6-point प्रपोजल इज करेक्ट. फ्रॉम शेख मुजिबुर रहमान, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. फॉर ईस्ट पाकिस्तान, ये भी करेक्ट है. तो ये पूरा सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है. नाउ इंडिया पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट 1998, ये हमने डिवाइड कर लिया. इंडिया इज करेक्ट, पाकिस्तान इज करेक्ट. न्यूक्लियर टेस्ट किए थे उन्होंने 1998, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज नॉट रॉन्ग. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, साफ्ता ठीक है, साइंड एट द 7th साक समिट एंड इन इस्लामाबाद. ओके, तो साफ्ता ओके 7th साक समिट पे साइन हुआ था वो? आई डोंट थिंक सो. और 7th साक समिट इस्लामाबाद में हुआ था? नो, इट वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली. ठीक है, आई गेस द 12th साक समिट वॉज हेल्ड इन इस्लामाबाद. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. सो दिस इज आर आंसर. अब ऑब्वियसली तुम्हें आंसर मिल गया है तो तुम फर्दर तो पढ़ोगे नहीं. ओके, बट अगर डाउट है देन यू कैन रीड द फर्दर स्टेटमेंट्स. सो नाउ द 8th क्वेश्चन इज, इन द डेकेड ऑफ 1960s द कांग्रेस पार्टी अंडर लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी वॉज अफेक्टेड बाय. ओके, लेट्स बिगिन. वायलेंस, डिफेक्शन, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, सेंसरशिप. ओके, तो डिफेक्शन था, है ना. इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा थे ना. विच वॉज मोर प्रोमिनेंट, ज़्यादा क्या चला? डेफिनेटली इट वॉज इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट. सो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स इज द राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, डैश पॉलिसी हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय द नीति आयोग. अच्छा, इसका आंसर बहुत सिंपल है, मेक इन इंडिया पॉलिसी. अच्छा, अब इसमें कन्फ्यूजन क्या होती है कि आयुष्मान भारत को लोग समझ लेते हैं वो भी पॉलिसी है. वो है पॉलिसी, बट आई गेस वो इसका सब पार्ट है. मेक इन इंडिया के अंदर आती है आयुष्मान भारत पॉलिसी. ओके, बट मेक इन इंडिया इज द मेन पॉलिसी. सो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर. Now moving on to question number 10, 11 and 12. So question number 10 says first Gulf War was also known as Operation Desert Storm. This is clearly mentioned, इतना तो पढ़ा ही होगा. So C is the right answer. Now question number 12, the high point of Cold War era. अच्छा, अब इस क्वेश्चन का मतलब है कि द हाईएस्ट पॉइंट जब ऑलमोस्ट वॉर होने ही वाली थी. ठीक है, इट वॉज द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस. ठीक है, अब ये जो बाकी चीज़ें हैं ये तो उल्टा, दीज टू वर फॉर मेकिंग अलायंसेज एंड कूलिंग डाउन ऑफ द कोल्ड वॉर. अटोमिक बॉम्ब अटैक हिरोशिमा नागासाकी World War II में हुआ था, नॉट अंडर द कोल्ड वॉर. कोल्ड वॉर स्टार्टेड आफ्टर World War II. Okay, so the right answer is A. Moving on to question number 12. Sardar Vallabhbhai Patel faced key challenges of integration in which of the following states? Book 2 का first chapter है, ये तो हमें पता ही होना चाहिए. So the right answer is, बताओ. Comment down in the comment section below. I am not answering. This is the most easiest question. Okay. Moving further. Question number 13.
With its pre-intended goal, the NDA-3 government started several socio-economic welfare schemes to make development accessible to the masses. इसका मतलब क्या है यार? जो NDA-3 गवर्नमेंट है ना, ये उस गवर्नमेंट की बात करें जो 1970 में जो बीजेपी वापस राइज हो गई थी विद मेजॉरिटी, है ना, उसकी बात हो रही है. सेवरल सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम्स, ठीक है. अच्छा, प्री इंटेंडेड गोल जैसे कि वो जो मैनिफेस्टो होता है ना, इलेक्शन मैनिफेस्टो, उसकी बात हो रही है कि उन्होंने क्या बोला था और उनका क्या स्लोगन या नारा था. सो इसका आंसर है सबका साथ सबका विकास. दिस वॉज द नारा. एंड ऑल्सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड विद जय जवान जय किसान, क्योंकि ये बुक में मैंशनड है और मोस्टली बच्चे इसका आंसर यही लिख के आते. आई नो. Now moving further, BJP-led coalition of 2014 was also called as. So इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरप्लस मेजॉरिटी कोलिशन. ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. मूविंग फर्दर, question number 15. The main agenda of World Social Forum is. इसका आंसर है नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन. ये ग्लोबलाइजेशन के चैप्टर से है. पर ये कि यार थोरो रीडिंग करोगे ना तुम्हें हो जाएंगे MCQs. इट इज़ नॉट अ बिग डील. बट वाई है, इफ़ यू हैवेंट रेड द बुक, the CBSE book has not been read by you, then it will be a task for you to solve these 16 questions. 16 भी छोड़ो, 24 questions. and सोच लो कि तुम्हारे 5 आंसर्स तो गलत होंगे if you haven't read the books thoroughly. Now moving on to the next part of 15th question. Globalization has dash dimensions. यार ये बहुत ईजी है, तुम ही बता दो इसका आंसर. प्लीज़ कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड ऑल्सो आई एम रिमाइंडिंग यू, अगर तुम्हें इसका PDF फॉर्म में यू वॉन्ट द सोल्यूशन ऑफ द सैम्पल पेपर, गो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. ह्यूमैनिटीज़ के नाम से है. चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, उसमें मैंने ID मेंशन करी हुई है. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 16. अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ओके, सो लेट्स बिगिन विद दिस. इसमें हम पहले क्या करते हैं, लेट्स एस्टैब्लिश कौन से साल में हुआ था, क्योंकि यही करना पड़ेगा. दैट इज़ ओनली व्हेन वील गेट टू नो अबाउट दिस. ओके, सो सबसे पहले हुआ था अटलांटिक चार्टर 1941 में. नाउ व्हाट वाज दिस अटलांटिक चार्टर? इट वाज अ बुक रिटन बाय so it was a book written by Churchill and Roosevelt. ठीक है, it was a statement which was ordered after the end of World War II. Okay, तो this was in the year 1941. Moving on, इसके बाद आता है हमारा याल्टा कॉन्फ्रेंस जो कि हुई है 1945 में. ठीक है, बट दिस वॉज इन द बिगनिंग ऑफ 1945. ओके, वेट लेट मी क्लियर दिस ताकि सही हो जाए सारा. बहुत कन्फ्यूजन हो रही है, आई नो. ओके, वील जस्ट राइट डाउन द ईयर्स नाउ. ठीक है, 1941 इज़ फॉर अटलांटिक चार्टर. 1945 का जो बिगनिंग वाला पार्ट है दैट इज़ फॉर याल्टा कॉन्फ्रेंस, क्योंकि इंडिया जॉइंड UN ऑन 24 अक्टूबर 1945. ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है दोनों में, बट आई गेस दिस वॉज इन February एंड दिस वॉज इन October. एंड देन आता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स काउंसिल विच वॉज डन इन 2006. तो अब हम ये ऑर्डर लगाते हैं. इट बिगिंस विथ 3, 2, 4 and 1. So option number B is the correct answer. Okay, let's move on to another section. अब इस सेक्शन में क्या है गाइज, इसमें चेंज आ गया है. पहले MCQ होते थे, अब ये ऐसे पैराग्राफ दे देते हैं. उसमें से दिल आस्क यू MCQs विच इज़ वेरी ईजी फॉर यू. तुम्हारा टाइम बच रहा है, तुम्हें इतने सारे MCQs मिल रहे हैं. व्हाट एल्स डू यू वांट? जस्ट रीड योर बुक्स प्रॉपरली. ओके, सो आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17.1. व्हाट वाज द मार्शल प्लान? भाई अच्छा बताओ, इसमें साफ साफ लिखा है फाइनेंशियल हेल्प फॉर रिवाइविंग यूरोप्स इकोनॉमी. तो फाइनेंशियल हेल्प का सिनोनिम है एड. सो ऑप्शन नंबर D इज़ द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू
second and third part of the same question. The US created a new security structure under which organization? ये हमने पढ़ा था नेटो, ठीक है, नेटो बनाया था उन्होंने, which was a collective security structure, कि अगर एक पे वार हुआ तो जो 12 की 12 कंट्रीज है वो समझेगी उन पे भी वार हुआ है. This is known as the collective security method. Okay, so NATO is the correct answer. Now 17.3, under which plan the Organization of European Economic Cooperation was established? पढ़ते हैं ऊपर. The Council of Europe, established in 1949, was another step forward in political cooperation. The process of economic integration of European capitalist countries proceeded step by step, leading to the formation of European Economic Community. ठीक है, किसके अंडर? मार्शल प्लान के अंडर. तो क्या है इसका सही आंसर? द राइट आंसर इज मार्शल प्लान. वही है गाइज, ये पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस में ना ज़्यादा कुछ है नहीं करने को, बिकॉज द आंसर इज ऑलरेडी गिवन इन द पैराग्राफ, बट दैट डजंट मीन कि तुम बुक रीड नहीं करोगे, यू हैव टू रीड इट. Okay, 17.4, which organization became a forum where the Western European states began to cooperate on trade and economic issues? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पैराग्राफ. ये पैराग्राफ किस पे है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन 1990s में हुआ था, दी LPG पॉलिसी. ठीक है, पहले तुम ना बस ब्रीफली देख लेना कि क्या है इस पैराग्राफ में, टॉपिक देख लेना, बिकॉज ऑब्वियसली यू विल बी नोइंग द आंसर्स. तो प्लीज़ ऐसा ही सोचना कि ज़रूरत ही ना पड़े इसको रीड करने की, ताकि तुम्हारा टाइम सेव हो एंड या यू गेट गुड मार्क्स. Okay, so point 1, the early 1990s saw the era of all of the above. Obviously, so simple. 18.2, the third democratic upsurge is based on the principle of, इसमें पैराग्राफ में दिया हुआ है, the right answer is survival of the ablest. Okay, now how many democratic upsurges are identified in post-independence history of India? The right answer is option number 3, C, which is 3. Also guys, I'm reminding you again and again to go and follow me on Instagram. I'll be providing you the notes there and the solution of the sample papers. Okay. Now coming to the next question. The third democratic upsurge seeks to promote the dash who constitute a significant chunk of Indian society. इसका आंसर आप बताइए मुझे. चलो, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, और अगर ना आए तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट्स डाउन बिलो. आई विल शेयर यू द आंसर. दिस इज़ सिंपल. ओके, अब आता है हमारा सेक्शन सी, विच इज़ दी शॉर्ट आंसर्स. 2 मार्कर्स हैं ये, ठीक है. तो अब भाई हमें 2 मार्कर्स में कितना लिखना है? आई वुड से 2 मार्कर्स में तुम्हें 2 पॉइंट्स लिखने हैं विथ अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन. ठीक है, शॉर्ट इंट्रोडक्शन एंड अ सिंपल कंक्लूजन. ठीक है, छोटू सा ही एकदम. ठीक है, सो दैट द इम्प्रेशन ऑन द टीचर इज ग्रेट. Okay, so moving on to the map question. ठीक है, सेक्शन E talks about the map question. ठीक है, इसमें अब हमें कैसे करना है? इसमें देखो लिखा है कि आइडेंटिफाई दी स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन एंड राइट देयर करेक्ट नेम्स इन योर आंसर बुक विद रिस्पेक्टिव सीरियल नंबर. अब देखो, ये जो सीरियल नंबर ऑफ द इंफॉर्मेशन यूज्ड है, इसमें वील राइट डाउन ये वाले, दीज आर द सीरियल नंबर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है, वेट, आई विल डू इट विद द रेड वन. दीज आर दी सीरियल नंबर, तो हम इसमें पहले लिख देंगे. ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5. ठीक है, उसके बाद आता है अल्फ़ाबेट कंसर्न्ड. अब ये अल्फ़ाबेट किसकी बात हो रही है? ये हमारे मैप में अल्फ़ाबेट्स दिए हैं, इनकी बात हो रही है. ओके, नाउ आई एम गिविंग यू द आंसर्स.
The state related to Karpuri Thakur, who implemented reservation for backward classes, it is Bihar. He was the CM of Bihar. Then the state related to K. Kamaraj, who started the midday meal program for school students, it is Tamil Nadu. ठीक है. Then वी कम टू, अब देखो जैसे जैसे तुम्हें स्टेट्स के नाम पता चल रहे हैं, राइट इट डाउन हियर. ठीक है, नेम ऑफ द स्टेट के अंदर. तो फर्स्ट का है हमारा बिहार. ठीक है, देन सेकंड का है हमारा तमिलनाडु. देन वी कम टू द स्टेट रिलेटेड टू समाजवादी पार्टी एंड द थिंकर राम मनोहर लोहिया, इट इज़ यूपी. Then the state related to Sardar Vallabhbhai Patel, who undertook the integration of princely states, it is Gujarat. The statue of Sardar Vallabhbhai Patel is also situated in Gujarat itself. Okay, then the state from where Article 370 was revoked. इतनी general knowledge तो I guess सबको होगी ही, है ना. So it is Jammu and Kashmir. Now we are going to mark them. ठीक है, और जहाँ जो हम मार्क करेंगे उसके अल्फ़ाबेट्स हम इधर फिल इन करेंगे. इधर हमारे अल्फ़ाबेट्स आएंगे. ओके ओके, सो लेट्स सी कि कौन सी स्टेट कहाँ पे है. ई पे है हमारी जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, देन हमारा गुजरात है डी पे. देन हमारा यूपी बिहार. ठीक है, एंड देन हमारा तमिलनाडु. So these are the states. So this was our map question. We've solved it completely. Now comes the cartoon question. So moving on to the cartoon question. Study the cartoon given below and answer the questions. अब ये कार्टून किसके बारे में है, हम इससे क्या समझ पा रहे हैं, फ़िलहाल वो देखते हैं. हम इधर समझ पा रहे हैं ये UN है. ठीक है, एंड दिस depicts the peace कि UN is made for peace. ठीक है, establishment of peace. ठीक है, and this is a very huge ऐसे powerful hand. ठीक है, और ये वॉर की बात कर रहा है. ओके, एंड इधर क्या लिखा है, इफ़ द राइट वन डोंट गेट यू देन द लेफ्ट वन विल. ठीक है, तुम एक की जगह हो पाओगे. ठीक है, इतना हमने स्टडी किया है कार्टून. नाउ लेट्स आंसर दीज क्वेश्चंस. व्हाट डज दिस कार्टून डिपिक्ट? दिस कार्टून डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन UN एंड US. ठीक है, UN एंड US. ठीक है, दिस ऑल्सो ठीक है कि इवन UN कैन नॉट कंट्रोल USA एंड इट्स पावर. ठीक है, ये दिखाना चाह रहा है कि US हैज़ द nuclear power, the military power, everything, and that that USA is the hegemonic power in the world, as opposed to UN, which is the peacekeeping power. Now, what has been the reasons for immense influence of US on UN? Give any two reasons. इसमें hegemony में जो 2 reasons थे, any two you can answer. कि one can be that US is the highest payer. ठीक है, वो सबसे ज़्यादा फाइनेंस करता है UN को. ठीक है, बजट. बट या यू कैन गिव एनी 2 रीजन्स दैट मोस्ट ऑफ द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफिसेज, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस आर सिचुएटेड इन द न्यूयॉर्क. ठीक है, US में सिचुएटेड है वो. इज़ द कार्टून स्टिल रेलिवेंट? I think yes, the cartoon is still relevant. US is a major constraint on the balance of power situation. ठीक है, it is still relevant in today's times. Moving on to the long answer questions. Now how to write these long answer questions? 6 marker है, 6 points तो बनते हैं, plus intro and conclusion. ठीक है, so this is how we'll write them. So this was a basic overview of the question paper and the answers. You can definitely get the answers by following me on Instagram. You can follow the ID that has been provided in the description box below, and you will be provided with all the notes of the chapters that I've taught till now, which is chapter 1, 2 and 3 of history, plus the 4th chapter, because that will be coming really soon. So go follow me there for notes and the solutions of the sample papers.
So guys, that is it for today's video, and I hope you're doing great and learning well. Also, I'll be really happy if you could give me any suggestions of any topic which you're facing a problem with. I'll definitely make a video on those. And also, don't forget to like, share and subscribe to my channel. It just takes 1 single second. Happy learning.